everyone, welcome back to my channel Angel Education Store. Today I am here with a new chapter explanation, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. So like, share and comment this video. Don't forget to subscribe my channel. So let us start. 10th May dawned bright and clear. 10 मई की सुबह उज्जवल और साफ थी. For the past few days, I had been pleasantly beset by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. पिछले कुछ दिनों से मैं गणमान्य व्यक्तियों और नेताओं से घिरा हुआ था जो उद्घाटन से पहले अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए आ रहे थे. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. यह उद्घाटन दक्षिण अफ्रीकी धरती पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का अब तक का सबसे बड़ा जमावड़ा होगा. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. यह समारोह प्रिटोरिया में संघ भवनों द्वारा निर्मित बलुआ पत्थर के एम्फीथिएटर में आयोजित किया गया. For decades this had been the seat of white supremacy and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट. दशकों तक यह श्वेत वर्चस्व का गढ़ रहा था और अब यह दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक गैर नस्लीय सरकार की स्थापना के लिए विभिन्न रंगों और राष्ट्रों के इंद्रधनुषी समागम का स्थल था. On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter जेनानी. उस सुंदर शरद ऋतु के दिन मैं अपनी बेटी जेनानी के साथ था. On the podium, Mr. de Klerk was first sworn in as second deputy president. मंच पर सबसे पहले श्री डी क्लार्क को दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई. Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. उसके बाद थाबो म्बेकी को प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करने और उसे बनाए रखने तथा गणतंत्र और उसके लोगों की भलाई के लिए खुद को समर्पित करने की शपथ ली. To the guests and the watching world, I said, वहाँ उपस्थित अतिथियों और उपस्थित विश्व से मैंने कहा, Today, all of us do, by our presence here, confer glory and hope to newborn liberty. आज हम सब यहाँ अपनी उपस्थिति से नवजात स्वतंत्रता को गौरव और आशा प्रदान करते हैं. Out of the experience of must be born a society of which all humanity will be proud. एक असाधारण मानवीय आपदा के अनुभव से जो बहुत लंबे समय तक चली, एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर
पूरी मानवता को गर्व होगा। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. हम जो कुछ समय पहले तक अपराधी थे, आज हमें अपनी धरती पर विश्व के देशों की मेजबानी करने का दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हुआ है। We thank all of our distinguished international guests for having come to take position with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for a human dignity. हम अपने सभी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों को धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे देश के लोगों के साथ न्याय, शांति और मानव सम्मान की साक्षात जीत पर हस्ताक्षर करने के लिए यहाँ आए हैं। We have at last achieved our political emancipation. हमने अंततः अपनी राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली है। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. हम अपने सभी लोगों को गरीबी, वंचना, पीड़ा, लिंग और अन्य भेदभाव के निरंतर बंधन से मुक्त करने का संकल्प लेते हैं। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. कभी नहीं और फिर कभी ऐसा नहीं होगा कि यह सुंदर भूमि पर फिर से एक दूसरे द्वारा उत्पीड़न का अनुभव करेगी। The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom resign. God bless Africa. इतनी शानदार और मानवीय उपलब्धि पर सूरज कभी अस्त नहीं होगा। स्वतंत्रता का शासन हो। भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दे। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters over the Union buildings. कुछ ही क्षणों बाद हम सभी ने आश्चर्य से अपनी आंखें उठाई, क्योंकि दक्षिण अफ्रीकी जेट, हेलीकॉप्टर और सैन्यवाहकों की शानदार कतार संघ भवनों के ऊपर एकदम सटीक स्वरूप में गर्जना कर रही थी। It was not only a display of pinpoint precision and military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. यह न केवल सटीकता और सैन्य बल का प्रदर्शन था, बल्कि लोकतंत्र के प्रति सेना की वफादारी और एक नई सरकार के प्रति वफादारी का प्रदर्शन था, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनी गई थी। Only moments before the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. कुछ ही क्षण पहले दक्षिण अफ्रीकी रक्षा बल और पुलिस के सर्वोच्च जनरलों ने, जिनके सीने पर अतीत के रिबन और पदकों से सजे हुए थे, मुझे सलामी दी और अपनी वफादारी की शपथ ली। I was not unmindful of the fact
that not so many years before they would not have saluted me but arrested me. मैं इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं था कि कुछ वर्ष पहले उन्होंने मुझे सलामी नहीं दी होती बल्कि गिरफ्तार कर लिया होता. Finally, a chevron of impala left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. अंत में इम्पाला जेट्स के शेवरोन ने नए दक्षिण अफ्रीकी ध्वज के काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरे रंग का धुआं छोड़ा. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Nkosi Sikelel Africa and blacks singing Die Stem, the old anthem of Republic. मेरे लिए इस दिन का प्रतीक हमारे दो राष्ट्रगानों का बजाना था तथा श्वेत लोगों द्वारा नकोशी सिकेलल अफ्रीका और अश्वेतों द्वारा गणतंत्र के प्राचीन राष्ट्रगान डाई स्टेम गाए जाने का दुश्मन था. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. हालांकि उस दिन दोनों समूह में से किसी को भी उस राष्ट्रगान के बोल याद नहीं थे जिससे वे कभी घृणा करते थे, लेकिन जल्द ही उन्हें उसके बोल याद हो गए. On the day of inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. उद्घाटन के दिन मैं इतिहास के विज्ञान से अभिभूत था. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. 20वीं सदी के पहले दशक में भयंकर एंग्लो-बोयर युद्ध के कुछ साल बाद और मेरे जन्म से पहले दक्षिण अफ्रीका के गोरे चमड़े वाले लोगों ने अपने मतभेदों को दूर किया और अपनी ही भूमि के काले चमड़े वाले लोगों के खिलाफ नस्लीय वर्चस्व की एक व्यवस्था खड़ी की. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known. उन्होंने जो संरचना बनाई वह दुनिया की अब तक के सबसे कठोर, सबसे अमानवीय समाजों में से एक का आधार बनी. Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples, regardless of the color of their skin. अब 20वीं सदी के आखिरी दशक में और अपने 8वें दशक में उस अवस्था को हमेशा के लिए पलट दिया गया और उसकी जगह एक ऐसी अवस्था ने ले ली जो सभी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को मान्यता देती है, चाहे उनकी त्वचा का रंग कुछ भी हो. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people,
people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. वह दिन मेरे हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदानों के माध्यम से आया था। ऐसे लोग जिनके दुख और साहस को कभी गिना नहीं जा सकता और ना ही चुकाया जा सकता। उस दिन मुझे लगा, जैसा कि मैंने कई अन्य दिनों में महसूस किया है, मैं उन सभी एयरटन देशभक्तों का योग मात्र था जो मुझसे पहले चले गए थे। That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see that their sacrifices had wrought. वह लंबी और महान पंक्ति समाप्त हो गई और अब मेरे साथ फिर से शुरू हुई। मुझे दुख हुआ कि मैं उनका धन्यवाद नहीं कर पाया और वे यह नहीं देख पाए कि उनके बलिदानों ने क्या किया। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. रंग भेद की नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों में एक गहरा और स्थायी घाव पैदा कर दिया है। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. हम सभी को इस गहरे घाव से उभरने में कई साल या शायद कई पीढ़ियां भी लग जाएंगी। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulus, the Chief Luthils, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobukways of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that the may never be known again. लेकिन दशकों के उत्पीड़न और क्रूरता का एक और अनपेक्षित प्रभाव पड़ा और वह यह है कि इसने हमारे समय के ओलिवर टेम्बोस, वोल्टर सिसुलस, चीफ लुबुलिस, यूसुफ दादूस, ब्रेम फिशर्स, रॉबर्ट साबुकवेश को जन्म दिया। ऐसे असाधारण साहस, बुद्धि और उदारता वाले लोग कि उनके जैसा फिर कभी नहीं देखा जा सकता। Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. शायद चरित्र की ऐसी ऊंचाइयों को बनाने के लिए उत्पीड़न की ऐसी गहराई की आवश्यकता होती है। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil. But I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. मेरा देश खनिजों और रत्नों से समृद्ध है जो इसकी मिट्टी के नीचे हैं, लेकिन मैं हमेशा से जानता हूँ कि इसकी सबसे बड़ी संपत्ति इसके लोग हैं जो सबसे शुद्ध और हीरे से भी अधिक महीन और सच्चे हैं। It is
from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. इन साथियों से ही मैंने साहस का मतलब सीखा. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies that imagination. मैंने बार बार देखा है कि पुरुष और महिलाएं एक विचार के लिए जोखिम उठाते हैं और अपनी जान दे देते हैं. मैंने पुरुषों को हमला और यातनाओं के बावजूद बिना टूटे खड़े होते देखा है. एक ऐसी ताकत और लचीलापन दिखाते हुए जो कल्पना से परे है. I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it. मैंने सीखा साहस का मतलब डर का अभाव नहीं है बल्कि उस पर विजय पाना है. The brave man is not he who does not feel afraid but who conquers that fear. बहादुर आदमी वह नहीं है जो डरता नहीं है पर वह जो उस डर पर विजय प्राप्त कर लेता है. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. कोई भी व्यक्ति किसी दूसरी व्यक्ति से उसकी त्वचा के रंग या उसकी पृष्ठभूमि या उसके धर्म के कारण नफरत करते हुए पैदा नहीं होता है. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite. लोग जरूर नफरत करना सीखते हैं और अगर वे नफरत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है क्योंकि प्यार इंसान के दिल में नफरत की तुलना में अधिक स्वाभाविक रूप से आता है. Even in the grimest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second. But it was enough to reassure me and keep me going. जेल में सबसे कठिन समय में भी जब मेरे साथियों और मुझे हमारी सीमाओं से परे धकेला जाता था तो मैं एक गार्ड में मानवता की एक झलक देखता था. शायद सिर्फ एक सेकंड के लिए, लेकिन यह मुझे आगे बढ़ने और आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त थी. In life, every man has twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation on to his people, his community, his country. जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के दोहरे दायित्व होते हैं. एक दायित्व अपने परिवार, अपने माता पिता, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के प्रति दायित्व, और दूसरा अपने लोगों, अपने समुदाय और अपने देश के प्रति दायित्व होता है. In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities. एक सभ्य और मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचियों और क्षमताओं के अनुसार उन दायित्वों को पूरा करने में सक्षम होता है. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of these obligations. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill
his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home, and was forced to live a life apart, a twilight existence of scarcity and rebellion. साउथ अफ्रीका जैसे देश में मेरे जैसे जन्म और रंग के व्यक्तित्व के लिए उन दोनों दायित्वों को पूरा करना लगभग असंभव था। दक्षिण अफ्रीका में एक अश्वेत व्यक्ति जिसने मनुष्य के रूप में जीने का प्रयास किया, उसे दंडित कर दिया गया। दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति जिसने अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश की, उसे अनिवार्य रूप से अपने परिवार और अपने घर से निकाल दिया गया और उसे गोपनीयता और विद्रोह के हल्के अस्तित्व में अलग जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and a husband. मैंने शुरू में अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर रखने का विकल्प नहीं चुना था, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश में मैंने पाया कि मुझसे एक बेटे, एक भाई, एक पिता और पति के रूप में अपने दायित्वों को पूरा करने से रोका गया था। I was not born with a hunger to be free. मैं आज़ाद होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। I was born free. Free in every way that I could know. Free to run in the fields near my mother's hut. Free to swim in the clear stream that run through my village. Free to roast meals under the stars and ride the broad backs of slow-moving bulls. मैं आज़ाद पैदा हुआ था, हर तरह से आज़ाद जिसे मैं जानता था। अपनी माँ की झोपड़ी के आसपास खेतों में दौड़ने के लिए आज़ाद, अपने गांव से होकर बहने वाली साफ नदी में तैरने के लिए आज़ाद, तारों के नीचे आटे की रोटनी बुनने के लिए आज़ाद और धीमी गति से चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए आज़ाद। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपने कबीले की रीति रिवाजों का पालन किया, मुझे मनुष्य या ईश्वर के नियमों से कोई परेशानी नहीं हुई। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. जब मुझे पता चला कि बचपन की आज़ादी मुझसे पहले ही छीन ली गई थी, तभी मुझे इसकी भूख लगी। सबसे पहले एक छात्र के रूप में मैं सिर्फ अपने लिए आज़ादी चाहता था। रात में बाहर रहने, जो चाहूँ पढ़ने और जहाँ चाहूँ जाने जैसी क्षणिक आज़ादी। Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. बाद में जोहान्सबर्ग में एक युवा के रूप में मैं अपनी क्षमताओं को प्राप्त करने, अपनी आजीविक कमाने, शादी करने
और परिवार बनाने की बुनियादी और सम्मानजनक आज़ादी के लिए तरसता था। एक विद्ध जीवन में बाधा न बनने की आज़ादी। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि न सिर्फ मैं आज़ाद नहीं था, बल्कि मेरे भाई बहन भी आज़ाद नहीं थे। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. फिर मैंने देखा कि सिर्फ मेरी आज़ादी ही नहीं, बल्कि मेरे जैसे दिखने वाले हर व्यक्ति की आज़ादी छीनी गई थी। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. यही वह समय था जब मैं अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गया, और यही वह समय था जब मेरी अपनी स्वतंत्रता की भूख मेरे लोगों की स्वतंत्रता की महान भूख बन गई। It was the desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live life a monk. यह मेरे लोगों की स्वतंत्रता की इच्छा थी, ताकि वे सम्मान और आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन जी सके, जिसने मेरे जीवन को प्रेरित किया, जिसने एक भयभीत व्यक्ति को एक साहसी व्यक्ति में बदल दिया, जिसने एक कानून के पालन करने वाले वकील को अपराधी बना दिया, जिसने एक परिवार प्रेमी पति को एक बेघर व्यक्ति में बदल दिया, जिसने एक जीवन प्रेमी व्यक्ति को एक भिक्षु की तरह रहने के लिए मजबूर कर दिया। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. मैं किसी दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा पुण्यवान या आत्मत्यागी नहीं हूँ, लेकिन मैंने पाया कि जब मुझे पता था कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं हैं, तो मैं उन सीमित स्वतंत्रताओं का भी आनंद नहीं ले सकता था जो मुझे दी गई थी। Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. स्वतंत्रता अविभाज्य है। मेरे लोगों के हाथों पर जंजीरें मुझ पर जंजीरें थी। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. मैं जानता था कि उत्पीड़क को भी उत्पीड़ित की तरह ही मुक्त किया जाना चाहिए। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनता है, वह घृणा का कैदी है। वह पूर्वाग्रह और संकीर्णता की सलाखों के पीछे बंद है। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity.
अगर मैं किसी और की स्वतंत्रता छीन रहा हूँ तो मैं वास्तव में स्वतंत्र नहीं हूँ। ठीक वैसे ही जैसे कि जब मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीन ली जाती है तो मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। उत्पीड़ित और उत्पीड़क दोनों ही अपनी स्वतंत्रता से वंचित हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहना ताकि आपको ऐसे ही मज़ेदार नई चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन मिलती रहे। बाय एंड टेक केयर।